Hi students, how are you all? Fine? Well, what is the purpose of coming to this place is that I am going to introduce one test on behalf of Unacademy. Unacademy is a national level brand which is head office is in Bangalore, and I have been promoting the Ludhiana, Panchkula, Chandigarh and Dehradun Unacademy offices. Unacademy is planning to conduct one pan India test. That test is scheduled any day 22nd of September to 20th of October. The test is of 1 hour duration, and you can take that test that is based upon the pattern of JEE NEET, right? And we will be selecting one day, your school will be selecting one day and will conduct that test. The test is free of cost. There are no charges for the test. There are no charges for the test. Agreed? एक भी पैसा नहीं है उसमें लगेगा आपका. And Unacademy Unset, the making of champions, Unacademy National Scholarship and Aptitude Test. I would like to invite 2-3 students from 11th Science and +2 Science. Please join me. Be quick. जल्दी से girls आ जाइए. Walk up. Be quick. जल्दी से quick. I am asking you to come. And boys also. 3-4 boys. Now, here we go. Please beta, come here. Unacademy National Scholarship and Aptitude Test. I am asking 2-3 boys also come and girls also come. Please. Yes, please. Thank you. Girls और जो साइंस वाली आ जाइए बोला जल्दी से quick. Thank you. Unacademy National Scholarship and Aptitude Test. IIT JEE NEET UG class 6 to 12. Any student from 6th standard to 12th standard can take this test. Okay, and this is for those students who are not appearing from school point of view. Round 1 September 22 to October 2024. This test. Round 2 November 10 to 24. Right. What is the prizes? Trip to CERN, Switzerland. Special meet and greet with Sachin Tendulkar, the brand ambassador of Unacademy. You get a chance to meet Sachin Tendulkar. How's it? Good? You like him? You should clap. Then it's okay. A clap should not be 1, 2, cha cha cha. Just one clap is okay. Win up to 90% scholarship at Unacademy centers and an online subscription. If you want to take their help, 90% up to that your fees is wiped out. For example, you are going to take the online test practice sessions, or you are going to take something, whatever you like. So if you score well in this, you will get 90% scholarship and selection in special rankers group and all India rank. So that's all about Unacademy Unset. Thank you. Stay with me. Now, what is the purpose of this session? I basically want to tell you something about the science. There are so many queries students generally ask, how to do self-study, how to revise and all. So, how many people, when you are in which class? First of all, come and introduce please. Come here beta. Introduce yourself. Myself Devanshi, and I am studying in 11th. So, clap for Devanshi. Come. My name is Mehak. I am studying class +1. I am medical student. My name is Bhavika and I am in 11th standard. I am a medical student. Okay. Yes. My name is Om. I am in 11th class. Okay. I am Sarthak Pundir. I am in +2 class, non-medical. I am Ridul Christian Lomash. I study in +2 Science. +2 science, and I had taken medical. Okay. So, +2 students, when you talk about the Coulomb's law, it states that the force of interaction between the two charges is directly proportional to the Q1 Q2 inversely proportional to R square, F is equal to K Q1 Q2 upon R square, K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 to raise power 9 Newton meter square upon
coulomb square epsilon naught, 8.85 10 to minus 12 coulomb square meter square Newton inverse. Am I right? Plus one, when you come here, plus one, when you come here, you talk about which chapter? Say projectile you've done? Yes, sir. Anything which flies under the influence of the gravity alone is called projectile. Projectile, what is an ideal projectile? Which is having constant gravity, no air resistance, no propelling agent. Equation of projectile is y equal to x tan theta minus half gx square u square secant square theta, or y equal to x tan theta 1 minus x upon r, h is equal to u square sin square theta upon 2g, t is equal to 2u sin theta upon g, r equal to u square sin 2 theta upon g. If the two projectiles are seen simultaneously, they will be a straight line. So this is what the physics is. When you talk about the maths, non-medical, sin 2a to sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square a cos 2a, cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a, and so on. You know, this is the way you can keep the subject in your mind. Wise always revise. Agreed? Now the question is, when you people take medical or non-medical, you have a one perception that मैंने यार इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. ठीक है. मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? Devanshi, come here. I want more science students to join me here. Please come, feel comfortable. Ask me a question. पकड़ो इसको, माइक को ना, बोलो what. See, I'll tell you one thing. I was just going somewhere. There was, I just need a water bottle at that time. I stopped my car on the way, and मैंने जब पानी की बोतल ली तो उस खोखे के पीछे 4-5 लफाड़ू स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पी रहे हैं. तो मैंने एक उसको ऐसे से कर रहा है, तो मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आती, तुम सिगरेट पी रहे हो? कहता तेरे पैसे की पीते हैं. मैंने कहा सिगरेट पीने से शक्ल पता कैसी होगी? जैसे सिगरेट की डब्बी के ऊपर देख जरा, हमारी होगी तेरी तो नहीं होगी. अब क्या है, मेरे साथ बोलो, गधे को नमक, जोर से बोलो, गधे को नमक, सुअर को लजीज पकवान, कुत्ते को देसी घी, मूर्ख को इज्जत कभी हजम नहीं होती. तो जब कभी कोई ज्ञान की बात कोई किसी को दे तो बंदा बोलता है यार तू है क्या, मैं स्टार हूं. वो इसी किसी कैटेगरी में है, गधा, कुत्ता, सुअर, मूर्ख. ओके, तो जब कोई चीज आपको मिले उसको सीखनी चाहिए. अब मुझे क्वेश्चन पूछा क्या, व्हाट इज, आप इसमें फाइंड आउट करना आप किस कैटेगरी में हो, राइट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है? कितने लोगों को बोला जाता है बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तुम्हारे, इसलिए तुम शॉर्ट आंसर में नहीं प्रपेल कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल एट स्टडीज बिकॉज तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है. वुड यू लाइक टू कम? चलने में तकलीफ तो नहीं आपको, उठने में, चलने में? खड़े साइंस आ जाओ. तबीयत ठीक है? कोई बात नहीं, जब मर्द के दर्द नहीं होता तो तुम बहुत महान है. इधर आ जा, साइड दो. तुम कौन से हो, साइंस में हो? और तुम लोग आ जाओ इधर. आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे ना नई शादी होती दुल्हन. Introduce beta yourself. Come on. My name is Noreen. I study in class +2. I am a non-med student. Any question in your mind would you like to ask me? No, sir. What is concept of a concept? Is it a good question? Yes, sir. क्या होता है? Sir, आप बता दो. Introduce. तुम यहाँ बैठ जाओ, जब जरूरत होगी मैं सबको खड़ा करूँ. My name is Ojas, class +2. My stream is non-medical. Any question in your mind or just? No, sir. What is concept of a concept? कितने लोगों को ये क्वेश्चन बोला जाता है यार इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? कितने लोग इस चीज को फेस करते हैं? सर थ्योरी तो आ रही है सर, बट ये न्यूमेरिकल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व. ए डॉग इज रनिंग ऑन ए रोड, हिज टंग इज कमिंग एट 5 millimeter per second from his mouth. What is the angle made by the tail with the horizontal? कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मैं बोलूंगा जीरो. क्यों? डॉग इज डॉबरमैन. एक कुत्ता है वो सड़क पे भाग रहा है, उसकी जीभ 5 millimeter per second से बाहर निकल रही है, बताओ पूंछ कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से? मैंने बोला जीरो. क्यों? मैं क्या, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है.
अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट बताता हूं. कम हियर ओजस. मी एंड ओजस वी आर इन ब्यास लेक. हम लेक में हैं, एक बोटिंग कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर बोटिंग, तो अचानक उसमें एक होल में पानी आना शुरू हो गया. क्या आना शुरू हो गया? पानी. अब अगर ओजस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये क्या करेगा? एक होल और क्रिएट कर देगा. मैं बोलूंगा क्यों? कहता सर इस होल से पानी आ रहा है, उसमें से निकल जाएगा. तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. लेकिन अगर ये उस होल को प्लग करेगा तो क्या होगा? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. आप बोलते हो dr by r equal to minus dg by g. If you increase gravity by 1%, range will decrease by 1%. If you increase gravity by 5%, range will decrease by 5%. मैं बोलूंगा if you increase gravity by 10%, आप बोलोगे range will decrease by 10%. Wrong. r equal to u square sin 2 theta upon g. This formula is applicable when g is very very constant, nearly constant. So we cannot take variation more than 5%, dear students. बच्चा क्या लगा है? भेड़ चाल क्वेश्चंस. क्या उसका एक ही सोच है? उसका एक ही सोच है कि मैं शॉर्टकट्स लगाऊंगा. शॉर्टकट्स कभी भी काम नहीं करते. क्या किसी को क्या पता है? कई बार टीचर बोल देता, मैं बोल देता हूं बेटा जो मैं करवा रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा. सर आप कहीं नीट यूजी 2024 में तो नहीं थे जो अभी स्कैम हुआ है? आप कैसे बोल रहे हो कि जो मैं करवा रहा हूं वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा? नो. आप कोई श्योरिटी नहीं है. एक होता है एंटरटेनमेंट इन फिजिक्स, उसमें टीचर बोलेगा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. देन नाउ ये कॉमर्स वाले ने भी सुन लिया. मान लो कि हर मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स, जो अट्रैक्ट करती है. शंकर नाम क्या है? परीक्षित. इधर आ जा बेटा मेरे पास. परीक्षित, क्लास 12th, नॉन मेडिकल. हर मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट करती है. परीक्षित साहब बैग लेके चले गए हॉटस्पॉट. वहां पर पकौड़े थे बने हुए. बैग खोला, सोचा इस बैग में कुछ पकौड़े अट्रैक्ट होके आएंगे. क्यों नहीं आए? सर पता नहीं. Why do we introduce constant of proportionality? कोई बताएगा आंसर? भैया आप सब लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, साइंस में जो बैठे हैं, और सभी लोग एक से एक बहुत बढ़िया टीचर से पढ़ते हो. लेकिन अगर आप टीचर से क्वेश्चन नहीं ना पूछोगे तो आप खाली प्रवचन सुन के आ गए. बेटर है आप यूट्यूब पे पढ़ लो फिर. और आपको पता है 90% टीचर्स भी यूट्यूब से ही लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं और वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं. साइंसेस की बात कर रहा हूं मैं. तो अगर आप जब तक ओरिजिनल नहीं होगे तब तक आपके अंदर का सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. एग्रीड? तो मुझे बताओ वो समोसा क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा, वो मोमोज क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे? हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? आपको मैं 100 रुपीज प्राइज देता हूं अगर कोई मुझे यह बता दे कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर नहीं आपको पता तो बहुत सीरियसली इसको समझने की कोशिश करना. आप थोड़ी देर के लिए बैठिए सभी लोग. मुझे मार्कर देना. मैं मार्कर. अब आप सिंपली बोर्ड पे देखेंगे. F is proportional to product of masses. F is inversely proportional to square of distance. F is equal to g m upon d square. ये मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो मैंने कैपिटल G इंट्रोड्यूस किया.
क्यों किया? Why do we introduce constant of proportionality? मैं आपको ट्रबल कर रहा हूं. Why do we introduce constant of proportionality? सभी लोग इसका आंसर सुनो. The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. अगर कोई टीचर मिलता है आपको, तो उस टीचर को आप कितना सुनते हो, आप कितने उसके पात्र हो, आप वो कुत्ता, वो सुअर, वो मूर्ख, वो गधा कैटेगरी में अगर नहीं हो, अगर आप एक अच्छी इंसान की कैटेगरी में हो, तो आप उसको सुनते हो. जितना टाइम वो टीचर आपके साथ नॉलेज इंपार्ट करेगा, तो उतनी ज़्यादा टीचिंग आप एसोसिएट करोगे. यस और नो? तो टीचिंग इज इक्वल टू के टाइम्स द टाइम स्मॉल टी. टी कौन है? टीचिंग वैल्यू. के कौन है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. स्मॉल टी कौन है? टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो. अब के है, के मैंने लगाया तो एक बच्चे ने सोचा, वो कहता सर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब आपने रिमूव किया ना, तो आपने ये के इंट्रोड्यूस कर दिया. अब मुझे समझ आया, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज हम इक्वल लगाते हैं. ये भी आंसर नहीं है. अब मैं बताता हूं. जैसे वो बच्चा बैग लेके किसी ऑब्जेक्ट के सामने रख दिया, तो वो ऑब्जेक्ट बैग में नहीं आई, और वो कह रहा है कि हमें पढ़ाया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो कि हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है. तो ये क्यों नहीं हो रहा? वेल डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? टीचिंग ऑफ ए टीचर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी. के इज ग्रेटर देन 0. टीचर हैज गॉट ए नॉलेज. टीचर से आप कुछ भी पूछो, वो आंसर करेगा. Sir, which is the smallest particle? Electron? No, quarks. There are 6 quarks, top, bottom, string, charm, up, down. Sir, what are postulates of kinetic theory of gases? All gas molecules are spherical. They are very hard to compress. They move in random directions. Their collision is instantaneous. The distance between the two molecules is called free path. Their collision is elastic. The volume is negligible as compared to the total volume of the gas. Their impact causes pressure. Postulates of kinetic theory of gases or electron gas model. Sir, I rub glass with fur. ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा? मैं बोलूंगा पॉजिटिव. सर फर विद वूल, फर पे कौन सा चार्ज आएगा? मैं बोलूंगा पॉजिटिव. वूल पे नेगेटिव. सर वूल को, सर स्टील से रब करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? बताओ. वूल को अगर आप स्टील से रब करोगे तो कौन सा चार्ज आएगा? अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट विद हार्ड मेटल शूज हैविंग सील्ड वैक्स. अगर ग्लास को फर से रब करते हैं, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, फर पे नेगेटिव. फर को वूल पे करते हैं, फर पे पॉजिटिव, वूल पे नेगेटिव. वूल को सिल्क से करते हैं, वूल पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव. सिल्क को हार्ड मेटल से करते हैं, सिल्क पे पॉजिटिव, हार्ड मेटल पे नेगेटिव. हार्ड मेटल को सील्ड वैक्स, पॉलीथीन, CnH2n, alkenes, CnH2n+2. Polymerization, the phenomenon of uniting the large number of molecules under high temperature and pressure is called polymerization. टीचर से कुछ भी पूछो वो बताएगा. तो K is greater than 0. If K is equal to 0, टीचर क्लास में आएगा, पोडियम में एक किताब छुपाएगा या एक कागज छुपाएगा, उसमें से देख के पढ़ाएगा. और ऊपर मत देखो, हड्डियां तोड़ दूंगा, ठीक है? नीचे देखो ताकि ऊपर वो किताब, ऊपर बच्चा देखता है, टीचर किताब से देख के बोलता है. दैट इज K इज इक्वल टू 0. अगर K इज लेस देन 0 तो क्या है? टीचर डजंट नो द सब्जेक्ट, यू डिस्कार्ड दैट टीचर. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. नाउ व्हाई samosa is not coming? G is nothing but 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. 6.7 को आप 10 to 11 से डिवाइड करोगे पिंटो, वो नियरली 0 आ जाएगा. तो कांस्टेंट कैपिटल G इज नियरली इक्वल टू 0 फॉर डे टू डे लाइफ. So it is not applicable for day to day life, but it is applicable for planetary bodies like moon, like earth.
the student, one of my student is a part of ISRO Chandrayaan, Manish Gupta. He is my student from Patiala. I had given 6,000 doctors and engineers in the government, including AIMS FMC. If you go to Google, just type Vipin Sharma Physics. ये अनअकैडमी वाले बेवकूफ़ नहीं है. 44,000 स्टूडेंट्स इनके पास हैं, more than 22,000 plus teachers इनके पास हैं. I've got a chance to brand this along with the god of cricket, Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is a brand ambassador for entire India, and I have been associated with him. They asked me to go to every school, tell the students how to study, how to prepare. वो ये नहीं चाहते कि हमारे पास आओ, फोन नंबर दो, कॉलिंग करो, हेलो आप पिंटू के पापा बोल रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप यहाँ भेजो जी बच्चे को, हम बच्चे को बस दिखा देंगे. अबे नहीं यार, हाथी के बच्चे को उसकी मम्मी बोलती, तेरे को शर्म नहीं आती, तू उड़ना नहीं सीखा अभी तक. मम्मी आई एम वेरी सॉरी. देख बाज का बच्चा कितना उड़ रहा है. क्यों? कोचिंग वाला आता है ना, जब वो कहता है हमारी एकेडमी है, हम उड़ना सिखाते हैं. हाथी का बच्चा बैठा है, मेरे को, हाँ तेरे को भी सिखाएंगे, फीस ला. नो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पोटेंशियल जानो. आप कॉमर्स में भी बहुत एक्सेल कर सकते हो. आप जरूरी नहीं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बन जाओ, आईएएस करो. बीकॉम में भी बहुत अच्छा कर सकते हो. क्लैट करो तैयारी, क्लैट के लिए तैयारी कीजिए. हमारे पटियाला में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, दैट इज आईआईटी लाइक, तो वहां पर आप कीजिए. बिलासपुर के बहुत बच्चे पढ़ते हैं वहां, राइट. अपने आप को प्रूव करके दिखाओ ना यार, आप हो क्या. ये बड़ी बड़ी फुगरियां मारने तो सबको आती है. जब इसमें एक मेडिकल वाले आप जानते होंगे, एक हार्मोन, जब हम जिम लगाते हैं ना, तो उसके बाद ना एकदम से फील आ भाई, ओ यार मैं आ रहा हूं तेरे साथ. एंडोर्फिन, जब 4 पढ़ते हैं चाटे, तो उसके बाद दिल भी तो होना चाहिए ना, तो वो एंडोर्फिन निकल जाता है. अभी क्या है, अभी आप में एक फील है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. बिल्कुल कर सकते हो. क्यों? बॉडी वेट नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है. क्या है, जब भी आप स्कूल आओ ना, वॉक करते हुए दिमाग में ना, यहाँ 1 मिनट खड़े हो ना जरा. तुम कौन से हो? साइंस? आज खड़े हो. ये पढ़ना क्या लिखा है जोर से? विपिन शर्मा.